everyone. So, I am Dr. Madhulata Shukla, and today we are going to discuss about the chapter thermochemistry. So, basically, this is for the BSc Part 1, and it's physical chemistry, paper 1A, group B, and it's unit 2. So, in this thermochemistry chapter, we will be studying about the heat of chemical reaction, enthalpy, standard enthalpy change, and many more of the terms. So, first of all, I would like to explain that what is thermochemistry. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि थर्मोकेमिस्ट्री है क्या. ओके, तो थर्मो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन अ chemical reaction. So in thermochemistry, what we study about the energy changed whenever there is a change in chemical reactions. Okay, so now we are moving ahead. So chemical reaction are almost invariably accompanied by energy change. That is, it appears either in the form of evolution or absorption of heat. जैसे कि मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो जाता है या प्रोसीड करता है, तो आइदर इट एब्सॉर्ब्स एनर्जी और इट रिलीजेस एनर्जी. तो जब भी कोई नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है कोई भी चीज़, तो वहाँ पर न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है. तो द एनर्जी चेंज दैट ऑकर्स इन ए केमिकल रिएक्शन is largely due to change of bond energy. Due to the formation or breaking of new bonds, this energy change generally occur. Okay, so it results from the breaking of bonds in reactant and product of new bond in product. Okay, so उसमें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. और the change in internal energy of chemical reaction. What is the change in internal energy of chemical reaction if a reaction is proceed? So suppose we consider that a chemical reaction taking place at constant temperature and constant volume. Things should be noted here. Temperature is constant and the volume is also constant. तो जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन क्या होगा हमारा, तो वर्क डन विल बी जीरो. ओके, so from the first law of thermodynamics, this is the first law, mathematical form of first law of thermodynamics. If W is equal to 0, then here we will be putting W is equal to 0, therefore delta U is equal to Q, and we are representing here V because we are considering here the heat change at the constant volume. So QV is the heat exchanged at constant volume. Okay, तो सपोज मान लीजिए हम लोग इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से. In our thermodynamics chapter also we have studied all those terms, internal energy, enthalpy and other things. So considering that you all are aware of these terms, we are going forward in this thermochemistry chapter. तो सपोज हम मानते हैं कि यू आर क्या है हमारा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है, एंड यूपी क्या है हमारा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है. तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा हमारा, यूपी माइनस यू आर, दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. तो सपोज यार हम लोग एक रिएक्शन जैसे हमने दिखाया कि ये दिस इज द रिएक्टेंट एंड इट इज गोइंग थ्रू ए प्रोडक्ट, हियर इट इज गोइंग टू प्रोडक्ट. तो यू आर हमारा रिएक्टेंट का है, ये इंटरनल एनर्जी, एंड यूपी क्या है हमारा, प्रोडक्ट का है. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यूपी माइनस यू आर इज इक्वल टू क्यू. दिस इज द हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. ओके, now we are moving ahead and finding the enthalpy change in a chemical reaction. So enthalpy in the similar way, how we have found the internal energy change. Now in the similar way, if the pressure is constant, then the heat exchanged is represented as QP. Let QP be the heat exchange in a chemical reaction taking place at constant pressure. If a reaction is taking place at constant pressure, then the heat exchange we are considering here as QP. ओके, तो जब हम लोग जानते हैं कि इंथैल्पी क्या होता है, इफ द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज टर्म्ड एज इंथैल्पी चेंज. ओके, तो डेल्टा एच हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू QP. दिस इज द इंथैल्पी चेंज. ओके, here similarly you can see here this is the reactant having the enthalpy HR, and this is the enthalpy of the product HP. Therefore change in enthalpy delta H is equal to HP minus HR, and this is equal to the QP, that is the enthalpy of reaction.
Okay, so we have known the two terms: change in internal energy in a chemical reaction, and then the change in enthalpy of a chemical reaction. Okay, now we are moving to the next term. एक आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? अगर आपके किसी रिएक्शन में हीट जो है उसको हम लोग बाहर निकलता है, हीट इज गिवन आउट, देन इट इज accompanied by इवोल्यूशन ऑफ हीट. मतलब कि अगर आप कोई भी रिएक्शन ऐसा है जिसमें से कि रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद आपका हीट निकलता है, बाहर निकलता है, सराउंडिंग को जाता है, तो देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. एंड इन दैट केस HP is less than HR, that is the enthalpy of product is less than enthalpy of reactant. Therefore delta H जो होगा हमारा क्या होगा? नेगेटिव साइन आएगा. ओके. ऑन द अदर हैंड, अगर आपका रिएक्शन जब हमारा प्रोसीड कर रहा है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इफ द रिएक्शन इज प्रोसीड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के बाद रिएक्शन जा रहा है, तो वैसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शंस. These reactions are termed as endothermic reaction. और इस केस में क्या होता है? Enthalpy of product is greater than enthalpy of reactant, and then the delta H value is positive. Okay, so here we have shown the energy level diagram. This is the energy level diagram of exothermic reaction, and this is for the endothermic reaction. Here we can see that the reactants are at higher energy level. Here the energy of reactant is quite higher as compared to the product. तो दिस मच इज द एनर्जी रिलीज्ड. इतना हमारा जो है क्या होगा, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कोई भी रिएक्शन से अगर ये प्रोसीड होता है, तो दिस मच एनर्जी इज रिलीज, दैट डेल्टा एच विल बी निगेटिव. इतना निकलेगा हमारा एनर्जी. लेकिन इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक है, तो उस केस में क्या होता है? रिएक्टेंट का जो एनर्जी होता है वो हमारा लेस होता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट. तो ये रिएक्शन जब तक इतना एनर्जी हम लोग रिएक्टेंट को देंगे नहीं, तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा. ओके, तो जब कोई रिएक्शन हम बाहर से एनर्जी देने के बाद में अगर वो प्रोसीड करता है, तो दैट रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, now we are moving to the relation between enthalpy of reaction at constant volume and constant pressure. अभी हमने इसके पहले देखा कि enthalpy change in a chemical reaction क्या होता है and change in internal energy क्या होता है. Now we are moving to the relation between the enthalpy of reaction at constant volume and constant pressure. ठीक है, तो डेल्टा H, द क्वांटिटी डेल्टा एच एंड डेल्टा यू को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं? फर्स्ट हम लोगों ने जब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर किया था तो हम लोगों ने ये सारे रिलेशन देखा था. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी इज द change in volume that takes place in a given reaction. That is, suppose अगर हम लोग मान लें क्यू वी हमारा क्या था? क्यू वी इज डेल्टा यू. हमने पहले इक्वेशन में जो फर्स्ट वाले इक्वेशन जो हमारा है, इस वाले का क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच है हमारा. तो अब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा एच की जगह पर क्या लिखेंगे? क्यू पी लिखेंगे. डेल्टा यू की जगह पर क्या लिखेंगे? क्यू वी लिखेंगे. ओके, सो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस पी डेल्टा वी. ओके, and for the n moles of ideal gas we also know that pv is equal to nRT. ओके, तो मान लीजिए सपोज हमारे पास दो एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट है. तो सपोज N1 एंड N2 जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट. N1 किसका है? रिएक्टेंट का है. और गैसियस प्रोडक्ट का हमारा क्या है? N2 है. तो अगर इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, अगर N2 हमारा बड़ा है, मतलब प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारा ज़्यादा है अगर रिएक्टेंट से, देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? N2 minus N1. That is the difference between these two, product and reactant, and this we represent as delta Ng. Okay, तो the corresponding increase in volume हमारा क्या हो जाएगा? फिर डेल्टा भी क्या लिखेंगे? V by N, total volume by number of moles into delta Ng, change in the number of moles of the gas, change या increase in number of gaseous moles. Okay, तो P डेल्टा P हमारा क्या हो जाएगा? P का तो P रखेंगे हम लोग, डेल्टा V की जगह पर क्या पुट करेंगे? दिस वैल्यू.
P by N into delta Ng, P by N into delta Ng. This N and N got cancelled because Pv is equal to nRT होता है, तो this N got cancelled. सपोज यहाँ पी वी बाई एन है इंटू डेल्टा एन जी, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है हमारे यहाँ पर, तो इस वाले का एन और नीचे जो एन है उसका दोनों एन कट जाएगा, तो बच जाएगा आर टी इंटू डेल्टा एन जी. तो पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा एन जी इंटू आर टी. अब इस वैल्यू को पी डेल्टा वी को 6 वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा क्यू पी इज इक्वल टू क्यू पी प्लस डेल्टा एन जी आर टी. ओके, where delta Ng is the difference between the number of moles of gaseous product and the gaseous reactant. Okay, suppose we have seen here some examples. Here ये अमोनिया है हमारा, 2 मोल अमोनिया का क्या बनाता है, 1 मोल हमारा नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. तो हमारा 2 मोल रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2 हो गए, और प्रोडक्ट के कितने हो गए 3 एंड प्लस 1 4 मोल्स. तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा 4, number of moles of the product minus number of moles of the reactant, तो 4 minus 2 is equal to 2. ओके, तो QP is equal to क्या हो जाएगा QP plus 2RT. ओके, now next example is 2H2 plus O2 to give 2H2O. तो रिएक्टेंट में कितने हैं 2 plus 1 3 और प्रोडक्ट में कितने हैं 2 है. तो व्हाट विल बी द डेल्टा Ng वैल्यू, डेल्टा Ng is equal to 2, this is for the product 2 minus 3 is equal to minus 1. तो ये क्या हो जाएगा हमारा QP is equal to QV minus RT. ऊपर हमारा जो था डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव थी तो प्लस 2 RT हो गया. अगर निगेटिव आ रही है, नंबर ऑफ मोल्स अगर प्रोडक्ट में कम है तो माइनस में आएगा. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? तो अगर कोई भी रिएक्शन हमारा 25 डिग्री सेल्सियस मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यू कैन से 101.3 किलो पास्कल. अगर हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उस समय तो इंथैल्पी जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इंथैल्पी इज नोन एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ओके, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन हियर. जैसे अमोनिया हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक मोल ऑफ अमोनिया के फॉर्मेशन में इंथैल्पी, सॉरी हियर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H. ओके, नॉट डेल्टा U. इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा H नॉट. ठीक है, जीरो ऊपर नॉट जो लगा है उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड वैल्यू. anything which has been written here 0 or subscript O, it is called standard value. तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हमारा कितना होगा -46.0 किलो जूल पर मोल. वैसे ही HCl का फॉर्मेशन के लिए इंथैल्पी कितना, स्टैंडर्ड इंथैल्पी कितना है -92.3. वैसे ही और सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं जिसको कि आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड हैव नॉलेज कि आपका 1 मोल बनाने के लिए इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर बनाने के लिए 1 मोल जो बनाने में इंथैल्पी चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन. कंबस्टन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना उसको. ओके, तो अगर हम लोग it is defined as the enthalpy change accompanying complete combustion of 1 mole of substance at 25 degree Celsius and 1 atmospheric pressure. किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन लगा करके अगर हम लोग उसको जलाते हैं तो उससे जो इंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन. ओके, सपोज यार मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कंबस्टन करते हैं तो इससे जो एनर्जी निकलती है वो हमारी -890.3 किलो जूल पर मोल है. ओके, टेम्परेचर हियर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सिमिलरली स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. स्टैंडर्ड न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उदासीनीकरण. मतलब कि एक जैसे मान लो हम लोग आप कोई भी रिएक्शन जैसे करते हैं ना लैब में कि एक हमने एसिड को बेस में मिलाया तो क्या होता है वो एसिड बेस मिल करके न्यूट्रल एक हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है.
तो एसिड और बेस को जब मिलाते हैं, अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर, सी यार, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है एंड प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इस केस में जब स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज होगा तो उसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ, उस केस में जब इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा, हम लोग कहेंगे उसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। किसी भी एक मोल एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करने के लिए या वाइस वर्सा एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम उस एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं इस कंडीशन पर, तो उस केस में उस इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो हम लोग जनरली देखते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो उस केस में जो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आती है वो हमारी -57.3 या 4 के लगभग किलोजूल पर मोल आती है। ओके, तो Similarly, the enthalpy change accompanying the neutralization of one molar, यहाँ हमने एक बेस को एसिड से न्यूट्रलाइजेशन करके दिखाया, उसी तरीके से हम एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करते हैं at 25 degree and 1 atmosphere, so that is also called the standard enthalpy of neutralization of acid by the base. Okay, now the neutralization of hydrochloric acid by NaOH in dilute solution when the acid, alkali and the salt formed are completely dissociated may be represented as this one. ये आपका HCl है, this is the NaOH, and this is the salt formation NaCl, and the water is released. Okay, and this is water is also in the dissociated form. सो यहाँ पर हमने कुछ टेबल दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रॉन्ग एक एसिड है, बेस से न्यूट्रलाइज कर रहे थे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जैसे HCl को NaOH से किया तो -57.3 आया, HNO3 को NaOH से किया तो -57.28, नियरली अबाउट 3 आया। ये भी यहाँ पर HCl को KOH से करेंगे तो -57.4 आया, that is almost 57.34 like that one. Only when we neutralize the strong acid with a strong base, then we get this value enthalpy of neutralization. But if the acid or base, either of the two, is not strong, that is they are the weak acid or weak base, then the value changes from this one. Okay, that does not come as 57.3 or 4. See here, if however the acid or alkali is weak, the enthalpy of neutralization is different because the reaction now involves dissociation of the weak acid or the weak alkali as well. तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है वो तो पहले से वाटर में हमारा क्या है, डिसोसिएटेड फॉर्म में है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और बेस होता है वो डिसोसिएटेड फॉर्म में नहीं होता है। तो कुछ एसिड या बेस, उस मान लीजिए अगर आप एसिड लिए हो तो कुछ बेस उसको डिसोसिएट करने के लिए यूज अप हो जाता है। Okay, because H plus are not very easily removable from the weak acids. Okay, the neutralization of acidic acid with sodium hydroxide has been given here. One example, this is the sodium acetic acid CH3COOH. It dissociated to form CH3COO minus plus H plus, and this is the water in the ionic form H plus plus OH minus. Okay, as H plus are neutralized by OH minus furnished by the completely dissociated NaOH. NaOH हमारा क्या है, पूरा वो आयनिक फॉर्म है, Na प्लस OH माइनस की फॉर्म में है, लेकिन जो एसिटिक एसिड है वो हमारा कंप्लीटली डिसोसिएटेड फॉर्म में नहीं होता है, तो उसके इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए कि सम NaOH आर यूज्ड देयर। ओके, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ जो हमारा देखिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड में बी टेकन एज दिस मच, बिकॉज enthalpy of neutralization of acetic acid by sodium hydroxide found to be -55.23 किलोजूल, लेकिन जो एवरेज वैल्यू होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस OH माइनस का कितना होता है, 57.3 होता है। तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को अगर हम लोग लेस कर देते हैं तो दिस मच एनर्जी हैज बीन यूज्ड इन डिसोसिएटिंग द एसिटिक एसिड इटसेल्फ। Okay, that's why the value comes down to be -55.23 kilojoule per mole. Okay, similarly आपका अगर HCl से हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को करना है, न्यूट्रलाइज करना है,
तो उस केस में जो वैल्यू आती है हमारी -51.34 किलो जूल के लगभग आती है। हियर ऑल्सो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 57.3 से लेस कर दो आप इसको तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो वीक एसिड और वीक बेस के लिए जो उसको डिसोसिएट करने के लिए जो एसिड या बेस का यूज हो जाता है वो इतना लेस हो जाता है हमारा। ओके, सी हियर एसिटिक एसिड के लिए हमारा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना है -55.23, तो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया +2.09 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी जो यूज अप हो गया एसिटिक एसिड को टोटली डिसोसिएट करने के लिए। फॉर्मिक एसिड में +1.26 है, HCl के लिए -45.19। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा है, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको डिसोसिएट करने के लिए। सो in this lecture we are stopping it here only, and in case you have any problem please let me know. We will clarify in our doubt clearing session of the Zoom. Okay, so by the time being take care and stay safe. Thank you.